दर्शकों तुम देख रहे हो पंजाबी सिनेमा देखी कोरोना की शुरुआत में 3 महीने तो ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ महामारी है महामारी खत्म होने में समय लगता है कोरोना को लेके हाले तक कोई वैक्सीन का तैयार नहीं हुई ना ही लेके कोई दवाई का सबूत दिता गया है सिर्फ एकांतवास है जिस ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ एकांतवास फॉलो करते हो ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 7,94,000 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 4,96,000 ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ 21,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 21,604 ਮੌਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਹੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ मैम ये 17 मई की बात है मैं साइकिलिंग करता हूँ यूजुअली तो मैं साइकिलिंग करके घर आया था उस टाइम एंड मुझे नहीं पता मतलब जैसे ही मैं आया था उसके 2 घंटे बाद मुझे फीवर के थोड़े से सिम्टम्स लग रहे थे उस टाइम पे मेरी मदर को फीवर हो रहा था सुबह से और शाम तक मेरे ब्रदर को फीवर आ चुका था और ऑलमोस्ट मेरी पूरी फैमिली को फीवर हो गया था एक ही दिन में तो हमें यही लग रहा था कि नॉर्मल वायरल है क्योंकि इस टाइम पे वायरल भी बहुत ज्यादा फैल रहा था क्योंकि एक जो कोरोना वायरस है वो ऐसी डिसीज है कि आप इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपको हल्का सा फीवर लगा और आपने सोचा कि हमें कोरोना हो गया तो हमें यही लग रहा था कि हमें वायरल है 3-4 दिन हुए 5 दिन हुए हमने डॉक्टर को नॉर्मली चेकअप कराया उसने भी यही कहा कि ये वायरस है वायरस नहीं है सॉरी वायरल है तो हमें बट अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि ये नॉर्मल वायरल ही है बिकॉज वायरल में इतना ज्यादा नहीं हो पाता अंदर से इतनी ज्यादा हिट नहीं करती वो चीज देखते ही देखते मैम 10 दिन हो गए वो चीज ठीक नहीं हो पा रही थी तो हमने कहीं जाके 27 को टेस्ट करवाया मेरे ब्रदर ने सबसे पहले टेस्ट करवाया था तो उसको पॉजिटिव निकला कोरोना एंड उसको पॉजिटिव निकला तो हम पूरी फैमिली को कराना पड़ा तो हमने कराया तो हमें भी पूरी फैमिली को पॉजिटिव निकला उस टाइम बट उस टाइम तक हमारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट जा चुके थे बिकॉज ये 14 डेज तक रहता है अगर ठीक हो रहे हो आप अगर 14 डेज से ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी हेल्थ जो है वो क्रिटिकल होती जा रही है तो 10 दिन हो चुके थे उस चीज को हमारा जो सिम्टम्स है वो ऑलरेडी जा रहा था बट हमें पॉजिटिव आ गया बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो वायरस रह गया था ठीक है तो हमें तब पता चला कि हमें पॉजिटिव है बहुत ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ मैम जैसे कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा केसेस हो रहे थे दिन भर दिन 5,000 केसेस 6,000 केसेस हो रहे थे तो सबको यही लग रहा था कि हमें ना हो जाए ये जो बीमारी आई है तो उस टाइम पे डर यही लगता था कि बस कोरोना ना हो तो लेकिन एक चीज होती थी कि अब वायरल भी नहीं लग रहा था क्योंकि इतना ज्यादा वायरल कभी भी नहीं होता
एंड मेरे ब्रदर ने टाइफाइड का भी टेस्ट करवाया और मलेरिया का भी कराया, 2-3 और भी टेस्ट कराए, तो उसको कुछ नहीं निकला। तो एट द एंड जो चीज बची वो कोरोना बची, कि अगर ये चीजें नहीं है तो कोरोना ही होगा। तो तब हमें लगा कि हाँ ये हो सकता है, बट वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि हमें है, जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। पर वो जैसे ही रिपोर्ट सामने आई तो वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हाँ एक्चुअल में हम यस सारे परिवार ਨੂੰ कोरोना, सारे परिवार ਦੀ रिपोर्ट पॉजिटिव। यस मैम, सबकी पॉजिटिव, इवन मेरे फादर की भी पॉजिटिव थी एंड मेरे मदर की भी पॉजिटिव थी। तो वो चीज थोड़ी सी बुरा लगा, क्योंकि एजिड, इसमें जो एजिड पीपल हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। जो 10 साल से 8 साल के कम के बच्चे हैं और 50 to 60 प्लस हैं लोग, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस चीज में। जो यूथ है हमारा, जो यंग पीपल है, उनको इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अपना कुछ नहीं था, हमें तो पता था कि हमें आया है, हम रिकवर भी हो जाएंगे, बट मम्मी पापा का बहुत ज्यादा डर था। तो वही चीज थी, बट हाँ इट्स ओके। सारा परिवार है और फिर अस्पताल जाके दाखिल हो या फिर करे अपने आप को एकांतवास कर लिया। मैम जैसे कि मैंने बताया कि हमें सिम्टम्स ऑलमोस्ट जा चुके थे जब हमें पॉजिटिव आया, तो जैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए, उन्होंने हमें घर पे आइसोलेट होने के लिए कहा, बिकॉज हॉस्पिटल्स में क्या है मैम, लिमिटेड बेड्स हैं। अगर हम जैसे लोग जो घर पे ठीक हो सकते हैं, हम हॉस्पिटल की तरफ भागने लग जाएंगे, तो जिसको एक्चुअल में नीड है हॉस्पिटल की, वो नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, उनको बेड नहीं मिल पाएगा वहाँ पे, तो उनको फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। इसलिए हमने सोचा कि हम 10,000 बेड्स वाला आइसोलेशन सेंटर नहीं बनया सी, ये उਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ है। नहीं नहीं मैम, उस टाइम पे नहीं बना था, और अगर बन भी गया था तो मैम उसको ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हो तो आपको कुछ रिस्पांस नहीं मिलता ढंग से। आपको ये समझ नहीं आता कि आपको कॉल कहाँ पे करना है, क्योंकि जब हमें टेस्ट करवाना था उस टाइम पे भी हमने गवर्नमेंट हेल्पलाइन को कॉल किया, उनके रिस्पॉन्स आ रहा था, बट मतलब कुछ ठीक नहीं आ रहा था। उन्होंने दूसरा नंबर दिया, फिर हमने उस पर कॉल किया, तो वो प्रोसीजर बहुत लंबा होता जा रहा था। इसलिए हमने प्राइवेट टेस्ट की तरफ देखा और हमने प्राइवेट टेस्ट करवाए थे सबके। तो ये चीज, उस टाइम पे बेड्स भी इतने ज्यादा नहीं थे, तो हमने घर पे आइसोलेट होने के लिए सोचा और हम घर पे आइसोलेट हुए थे सारे। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी मैम, जिस दिन मुझे पॉजिटिव आया था उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे पॉजिटिव है और इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसका मतलब ये था कि मैं उस वीडियो से ये दिखाना चाहता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम पे मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, बट मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस जरूर आती है, बिकॉज बहुत छोटी चीज नहीं है ये। अगर वायरस है, बहुत गंदा अटैक करके जाता है आपकी इम्यूनिटी पे। आपकी बेसिकली इम्यूनिटी टेस्ट होती है इसमें कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको, कुछ लोग ऐसे भी है मैम जिसको पॉजिटिव आया भी होगा लेकिन उनको पता ही नहीं चला। उनको एक दिन के लिए फीवर आया होगा, यस, उनको एक दिन के लिए फीवर आया होगा, थोड़ा सा खांसी हुई होगी तो उनको लगा होगा नॉर्मल आया है, बट उनको नहीं पता कि उनको पॉजिटिव आके भी नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो ये चीज होती है मैम। ऐसा नहीं है कि सबको इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो। ऐसे जैसे मेरे फादर एजेड हैं, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको एक दिन के लिए रिकमेंड किया था कि हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए, तो वो एक दिन के लिए हॉस्पिटल भी गए थे। जैसे ही उनकी ब्रीथिंग नॉर्मल हुई वो वापस घर आ गए। तो इस चीज में सबको नहीं हो सकती ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जिसको अंदर से इम्यून सिस्टम वीक है और लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ सकती है। ਰਾਹੁਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਵ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ नहीं है, मेरे सारे परिवार ਦੇ ਜੀਵ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। मैम बेसिकली क्या होता है, जब घर में कोई एक मेंबर किसी को बीमार होता है या कुछ होता है, तो उसको 4 जने 5 जने उसको मोटिवेट करने वाले होते हैं कि तू ठीक हो जाएगा, या कुछ भी उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो बंदा फिजिकली चाहे ठीक ना हो, वो मेंटली ठीक हो जाता है। और मेंटली अगर कोई बंदा ठीक हो जाए तो उसकी बॉडी ठीक है। तो हमारे घर पे मैम, जैसे कि मैंने बताया कि सबको पॉजिटिव हुआ था, लेकिन वो हमारे घर पे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ गई थी उस टाइम पे, बिकॉज कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था किसी को। अगर मैं अपने ब्रदर को देखता हूँ तो वो भी वीक है, मैं अपनी मदर को देखता हूँ वो भी वीक है, सिस्टर को देखता हूँ वो भी वीक है, सब वीक है। तो उस टाइम पे वो बहुत हार्ड टाइम था हमारे लिए। बट वही है कि हार्ड टाइम आता तो है, लेकिन परमानेंट कुछ भी नहीं रहता। तो पर वो भी हार्ड टाइम आया और कुछ टाइम में निकल गया, और वापस से हम अपनी डेली रूटीन में आ गए और सब ठीक हो गया। प्लाज्मा डोनेट ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ठीक होया? नहीं मैम, एक्चुअली मैं जब हमें कोरोना हुआ था तो वो टाइम मैं सफर कर चुका था और मुझे ये फीलिंग आ चुकी थी कि जिसके घर में होता है उसको क्या फीलिंग होती होगी। तो बहुत बहुत बुरी फीलिंग होती है, वो बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है और उसी को पता होता है जो इस चीज से सफर कर रहा होता है। तो जैसे ही मुझे कोरोना हुआ था तो मैंने एक चीज सोच ली थी कि मैं इस केस में, कोरोना के केस में जितनी ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ उतनी ज्यादा करूंगा। लोगों के पास आने से भी डर रहे थे इस चीज में, अभी भी डर रहे हैं कि जिसको कोरोना है उससे दूर भागो, या इस घर में कोरोना, इस घर के पास मत जाओ। मैंने मैम एक चीज सोच ली थी कि अगर मेरे सामने कोई कोरोना पेशेंट भी होगा तो भी मैं उसको हाथ लगाने से 2 बार नहीं सोचूंगा, अगर उसको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो। क्योंकि मैम मुझे एक चीज पता है कि कर्मा बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा करते हो ना, तो ऊपर भगवान बैठा है, वो आपका कभी गलत नहीं होने देगा। तो एंड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज के लिए। मैं मतलब मेरी फैमिली हमेशा से यही कहती है कि जिसकी जहां पर हेल्प हो सकती है उसकी हेल्प जरूर करो। तो मुझे जब कोरोना प्लाज्मा के लिए कॉल आया तो उस टाइम पे, मतलब अभी की भी बात करूं तो मैं, मेरा इम्यून सिस्टम पहले की तरफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिकॉज इस चीज को हील होने में बहुत टाइम लगता है। बट मुझे इतना पता था कि मैं यंग हूँ और इम्यूनिटी मेरी काफी स्ट्रांग थी, तो कि मुझे देना चाहिए। जैसे उनका कॉल आया कि आप दे सकते हो, तो मैंने 2 बार भी नहीं सोचा कि किसी की हेल्प हो रही है वहां पे और कोई बंदा ठीक हो जाएगा इस चीज से। तो मैंने मैम उसी टाइम उनको हाँ बोल दिया एंड मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं प्लाज्मा दूंगा। ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ? मैम जैसे ही मुझे कॉल आया था तो उन्होंने कहा था कि हम आपको बताते हैं, अभी हमारी 1-2 जगह और बात चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही उनका दूसरे दिन कॉल आया तो उन्होंने मुझे सीधा यही बोला कि उन्होंने पहले बोला आप आ सकते हो, तो मैंने कहा मैं आपको अभी बताता हूँ, बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से गया हुआ था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज करा कि आप प्लीज आ जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो मैंने, अस्पताल तो कॉल होती है कि प्लाज्मा चाहिए ਤੁਹਾਡਾ? नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली जब सबसे पहले कांटेक्ट आया था तो जो पेशेंट है उनकी डॉटर का कॉल आया था मेरे पास, जिनका नाम राधिका है, और उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो उसके बाद जब मुझे कॉल्स आने स्टार्ट हुए तो उनकी फैमिली से ही किसी की कॉल आ रहे थे, जैसे उनके हस्बैंड के कॉल आ रहे थे, जो राधिका है उनके हस्बैंड के। तो उन्होंने बोला ब्रदर आप प्लीज आ जाओ, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो मैम मैं अपना काम छोड़ के, क्योंकि मुझे लगता है इससे बड़ा, मतलब इससे बड़ा क्या ही काम होगा अगर आप किसी की जिंदगी बचाने जा रहे हो। तो मैंने अपना काम छोड़ा जी जी। और मेरी डेस्टिनेशन से मैम वो जगह बहुत ज्यादा दूर थी, 45 किलोमीटर अप्रोक्स वो दूर थी, और ऑलरेडी 6 बज चुके थे शाम के। तो मैं फिर भी नहीं सोचा, मैं वहां से निकला और मैं सीधा हॉस्पिटल गया। वहां जाके मेरा एक कोरोना टेस्ट हुआ कि नेगेटिव रिपोर्ट, बिकॉज 14 डेज के अंदर अंदर की चाहिए होती है, और मैं ऑलरेडी नेगेटिव उससे पहले हो चुका था। सो तो उन्होंने मेरा कोरोना टेस्ट किया और 2-3 और टेस्ट होते हैं, HIV एड्स के टेस्ट होते हैं कि आपकी बॉडी कैपेबल है प्लाज्मा देने के लिए या नहीं। तो मैंने वो टेस्ट करवाया रात को। मैं उस दिन 10:30-11 बजे घर पहुंचा अपने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट डे आफ्टरनून में मुझे कॉल आता है ब्लड बैंक से कि आपका जो प्लाज्मा है आप वो डोनेट कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी कैपेबल है उसको देने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने मुझे 5 बजे बुलाया हॉस्पिटल, तो मैं उस दिन 5 बजे गया वहां पर और मैंने उनको प्लाज्मा दे दिया। की प्रोसीजर ਹੁੰਦਾ प्लाज्मा डोनेट ਕਰਨ ਦਾ? मैम उसका प्रोसेस कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। लोगों को इस टाइम पे लग रहा है कि प्लाज्मा बहुत बड़ी चीज है देने के लिए, प्लाज्मा ये है वो है, बट ये नॉर्मल, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही इसका सेम प्रोसीजर है। आपके जैसे ब्लड डोनेट करने में नीडल लगती है, सेम वैसे ही नीडल लगती है, और आपकी बॉडी से ब्लड ही निकाला जाता है। वो ऑटोमेटिकली जो मशीन होती है वो प्लाज्मा सेपरेट कर लेती है उस ब्लड से, एंड जो ब्लड होता है वो आपकी बॉडी में वापस चला भी जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी से सारा ब्लड निकाल लिया जाता है, आपकी बॉडी में वापस वो ब्लड डाल दिया जाता है। और जब मैंने दिया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जो प्लाज्मा देने से पहले का मेरी जो फीलिंग थी और उसके बाद की जो सिचुएशन या फीलिंग थी वो सेम थी। मुझे 1% भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था उससे कि मुझे वीकनेस हो रही है या फिर कुछ हो रहा है। सेम, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं मतलब एक डेट होती है कि अगर आप आज प्लाज्मा दे रहे हो तो 14 डेज के बाद अब आप दे सकते हो, बट मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरे को अगर किसी और पेशेंट को भी देना तो मैं दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत सारे
ਕੇਸਿਸ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵਰਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ने ਤੁਹਾਨੂੰ अलाउ कर ਦਿੱਤਾ कि कर ले किसी की मदद? जब मैंने अपने घर पे मैम बताया था कि मैं प्लाज्मा देने जा रहा हूँ, तो मेरे घर वालों ने मतलब इतना भी नहीं बोला था कि देख ले तू, तेरे को ठीक लगता है या नहीं। उन्होंने कहा तू जा। उन्होंने मुझे ये बोल के भेजा कि तू जरूर जा। और मुझे पता था कि मेरे घर से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी इस चीज को लेके। तो मैं गया उनको देने, एंड जिस फैमिली को मैं दे के आया था, उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि आपसे पहले हम 4 लोगों से बात कर चुके थे प्लाज्मा देने की। उन 4 में से 2 लोग ऑलरेडी आने के लिए तैयार थे। आधे रास्ते आप भी गए, वो कह रहे हैं हम पहुंचने वाले हैं आपके पास, बट उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो मैम इतना बुरा लगा ना वो सुन के कि एक पेशेंट है जो सीरियस है और आप उनके साथ ऐसे खेल खेल रहे हो कि हम आ रहे हैं, फिर फोन स्विच ऑफ कर रहे हो। आपको नहीं देना वो आपकी मर्जी, आप मना कर दो, बट किसी को डिले मत करवाओ ना। हो सकता है वो डिले उनके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए। तो वो चीज मुझे काफी बुरी लगी। और दूसरी चीज ये है कि आप नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते, मतलब अगर आप, मैम ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी का भला करते हो तो आपका भला करने वाले 100 लोग होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आपका कुछ नहीं जा रहा, आपको सिर्फ ब्लड डोनेट करना है, और किसी की बहुत बड़ी चीज ठीक हो रही है, इतनी बड़ी डिसीज है जिसकी अभी तक वैक्सीन नहीं है, और वो आपके ब्लड से ठीक हो रही है, तो आप क्यों नहीं दे सकते। मैं तो ये सोचता हूँ मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ਕੁਝ ऐसा ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैम इस टाइम पे जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं, बिकॉज जब मैंने प्लाज्मा डोनेट किया और मैंने वो वीडियो अपलोड करी, तो बहुत मोर देन 5000 लोगों को पता चल चुका था कि मैंने प्लाज्मा डोनेट किया है, क्योंकि मेरी वीडियो वायरल हो चुकी थी। एंड काफी लोगों के मेरे पास कांटेक्ट आ रहे थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको ये पता चल चुका था कि इसका कांटेक्ट एक एनजीओ से है जो इसकी हेल्प कर सकता है। तो मुझे मैम टाइम टू टाइम कांटेक्ट के लिए कॉल्स आ रही हैं कि राहुल उनको प्लाज्मा चाहिए, उनको चाहिए, उनको चाहिए। तो जैसे ही मैं अपने नियर बाय देखता हूँ तो कोई नहीं है प्लाज्मा देने के लिए। मैं एनजीओ में बात करता हूँ तो एनजीओ में भी लोगों के पास, एनजीओ कि आप जैसे लोग ही प्लाज्मा देते हैं, तो हम तो खुद सोच रहे हैं कि आपको कांटेक्ट करें क्योंकि हमें भी चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ, हम इतने बड़ा एनजीओ है, उनके पास भी लोग नहीं है, अगर प्लाज्मा दे हम ढूंढेंगे। तो यही चीज है, प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों की जो रेशियो है बहुत ज्यादा कम है। तो ये चीज देख के बहुत गंदा लग रहा है, बिकॉज केसेस तो इतने ज्यादा है और रिकवर्ड हमारे जो केस है इतने ज्यादा रिकवर्ड, फिर भी लोग नहीं देने के लिए तैयार। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि प्लाज्मा डोनेट जरूर करें। अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ बच सकती है तो जरूर करें, वो चीज जरूर करें। इट्स अ रिक्वेस्ट। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੈਕਸੀਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। मैम वही चीज है कि सब लोग अच्छे नहीं होते, और ये तो यही नेचर, हर बंदा अगर एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाए कि तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरा ये मानना है। बट ऐसे लोग ही नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैम आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले मैं भी इतना ज्यादा नहीं सोचता था, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मैच्योर नहीं था, और मैं इन चीजों में नहीं था कि मैं किसी की हेल्प करूं। वो चीजें आपको अच्छे लोगों के साथ रह के ही आती है। मुझे मेरी फैमिली ने सिखाया कि आपको हेल्प करनी चाहिए, और तो मुझे जाके ये चीज आई। अगर आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा, आपका जो सर्कल है, ग्रुप सर्कल है, या आपकी फैमिली ही आपको गलत सिखाएगी, तो आप ये चीजें कैसे करोगे। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। तो ये चीज आपको, जो लोगों को है, वो धीरे धीरे समझ आती है कि एक्चुअल में लोगों को अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। और जब अपने ऊपर आती है बात, जो लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये छोटी सी चीज हुई तो मेरा दिमाग इतना खुल गया। लोगों को हो रही है, रिकवर्ड हो रहे हैं, उसके बाद भी लोग मना कर रहे हैं देने की। मुझे काम है, कोई एक्सक्यूज, मैंने किसी को दिलवाना था प्लाज्मा, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वो कहते हैं मुझे कोई काम है। तो मैंने उनसे नॉर्मली पूछा कि क्या काम है, कहते मेरी जॉब है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तो मैम उस चीज को मतलब मैं आंसर भी नहीं दे सकता था उसको कि मैं क्या मतलब जबरदस्ती क्या कह के बुलाऊं।
मैंने उसको कहा कि भाई तू पैसे ले ले मेरे से, तू आ, तो उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, क्लियर ना। तो जब मैंने उस फैमिली को दिया था प्लाज्मा, उस टाइम पे मुझे 3 लोग ऑलरेडी अप्रोच कर चुके थे, बट बाय चांस उनका जो ब्लड ग्रुप था वो मैच नहीं हुआ था, लेकिन जिस फैमिली को मैं दे के आया उनका ब्लड ग्रुप मैच हो गया था, तो मैंने एक से करने के लिए मुझे देना है नहीं देना, मैंने देना था। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि जैसे मुझे 14 डेज होंगे मैं अगेन दूंगा, मैं जरूर ਬਹੁਤ दूंगा। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਹੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਹੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੰਗਾ ਮੈਮ। ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, महामारी है। महामारी खत्म होने में समय लगता है। कोरोना को लेके हाले तक कोई वैक्सीन का तैयार नहीं हुई, ना ही